रिवायतां ते हाशिए चढ़ाते ने। हाँ जी। ठीक है, फिर ਇਹਦਾ मतलब है कि फुरकान भी दुरुस्त है ते ਉਹ ਵੀ दुरुस्त ने, ਦੋਵੇਂ ठीक जा रहे ने। देखो जी हर बंदा ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਜੇ ਡੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣੀ ਹੈ ਟਿਕਟਾਕਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਸਟਾਪ ਬਲਾਸਫੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲੇ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਡੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇਖੋ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਆਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ISI ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ CID ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ FIA ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਕਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਲਕਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, 24,000 ਅੰਬਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਹੈ। ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤਹਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਕਾਫ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਨਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਣਾ, ਸਕੈਨ ਲਾਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਅਹਿਮਦੀ मुसलमान होना तो दूर की गल है। कोई भी किसी जड़ा मजहबी एक नहीं है ना वलीद भाई, आप लोगों ने सिर्फ टिकटॉक पे देखा है, मैं तो 10 साल से देख रहा हूँ, 12 साल से मेरे पास फेसबुक के हैं, व्हाट्सएप के हैं, टिकटॉक के हैं। 60 साल तो वेख रहे हैं जड़ा भी किसी मौत ते, किसी मुरसल ते, किसी नबी ते, किसी वली ते कोई जुबान दराजी करता, वो मुसलमान या अहमदी होना तो बहुत बड़ी गल है, वो इंसान ही नहीं है। ठीक है, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इजाजत चाहवागा। जज़ाकल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ नहीं है, लेकिन ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਸਲੇ ਨੇ एक ना ਬਲਾਸਫੇਮੀ एक होर चीज़ है। ये कहते हैं अगर मिर्जा साहब के खिलाफ किसी ने गल की है, साढ़े खुलफा के खिलाफ गल की है, वो ਬਲਾਸਫੇਮੀ है। ਤੇ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਬੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਜ਼ਾਦੀਏ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਰਾਏ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। अच्छा, वैसे भी मेरे को होने वाली अफ्तारी ही रह गए ने, बाकी 15 मिनट तक मेहमान आ रहे हैं ना, तो मैं फिर आना फ्री होकर। वो वलीद भाई नाम है मेरा, अवैस भाई नाम नहीं है। रोजा रखे हुए आज
कोई आईडी मेरी ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਰਾ ਮਸਰੂਫ हाँ जी ठीक है पई रहने दो पार्किंग पई रहने दो मैं कहता हूँ म्युनिसिपल वाले बात ना कि फिर मैं संभाल नहीं सकना मतलब कंट्रोल नहीं कर नहीं सकना नहीं बाकी ठीक है मैं बैठा आ गई है मैं बैठा वापस अब्दुल्ला भाई की हाल चाल है? जी बाजी अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला भाई ने जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। चला गया वो, भाग गया वो कादियानी। आपने भगा दिया जी। इसना होया हुन पहुंचे जी अपने घर ते मजे दी गल घर ते पहुंच गए आ। आवाज आ रही है? एक मिनट दियो अहमद भाई, एक मिनट दियो, बाजी कुछ कह रहे थे, मैं सुन ला फिर कर देंगे। जी बाजी। नहीं मैंने तो भी ऊपर आई भी नहीं तो भाग गया। हाँ जी वो पहले ही भाग गया, उन्होंने वो खुतबा सुनना है ना। उसको कैसे पता मैंने रिक्वेस्ट डाली? अच्छा उसका क्या आया था? खुतबा नहीं कह सकते। की ना अपना वलीद भाई आंदी भी आ रही है अहमद भाई आ रही है। मैं ये बताने आई थी कि जब तक ये जो कुरान था ना, जो सर्टिफाइड होता था प्रिंटिंग के बाद और फिर ये आगे लेकर जाते थे अपने मिर्जवाड़ों में बैक इन द डेज, उसमें ना सब चीज़ें चेक होती थी। उसके अंदर ना ये लोग ट्रांसलेशन को चेंज नहीं कर सकते थे। ट्रांसलेशन बिल्कुल वैसी ही होती थी जैसे कुरान में नॉर्मली आप जाएंगे, अभी पाकिस्तान में कुरान खोलेंगे वही ट्रांसलेशन मिलेगी। और अब इनको बल्कि ये जो रोते हैं ना कि हम पहले तो सर्टिफाइड था ये वो, इनको तो फ़ायदा इस चीज़ का कि वो सर्टिफाइड अब नहीं होता है कहीं से भी, क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी की अपने मतलब की अंदर ट्रांसलेशन फिट कर देते हैं। और इन लोगों के पास तो वो वाले भी हैं कुरान जहाँ पे नीचे इन्होंने मिर्ज़ा ताहिर का हाशिया भी चढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो वो भी इन्होंने प्रिंट आउट किए हुए हैं। तो ये क्या, ये तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ना हुआ कि पहले तो सर्टिफाइड होता था, तो पहले होता था अब तो नहीं होता ना। बाजी और आपके तो इतने सारा कुछ ही झूठे पता हैं, है। हाँ इतने झूठे हैं। जब कोई एक कादियानी कोई बात बोलता है, ठीक है, अब मेरा यहाँ पे कोई भाई है, सामने वाला गलत हो, बाजी यहाँ असल में से ना ये पता चलता है कि आप लोग कल्ट हो, क्योंकि आप लोगों को इजाजत ही नहीं है। आपका माइंडसेट ऐसे वायर किया गया है बचपन से कि चाहे कुछ भी हो जाए आपने कभी दूसरे अहमदी को पॉइंट आउट करना ही नहीं है कि वो गलत है। बाजी असल में ना ये जो उनसी मैं ये समझता हूँ कि जो प्रॉब्लम की जड़ है ना वो असल में है ही है। जब आप किसी को ये नहीं कह सकते ना अपनी जमात वाले को कि यार उसने गलत किया है, तो फिर इसका मतलब कि आप बुराई की जड़ रख रहे हैं, तो फिर वो बुराई बढ़ती है, कम नहीं होती। और यही हम रोज देखते हैं। लेकिन ये ना ऐसे मारेगी कि सारी जिंदगी तुम जलील होते जाओगे हर जगह कि मैं किससे कुट खा के आया हूँ। ओए होए होए। सियाल साहब मुझे मेरे सामने सियाल साहब मुझे याद है आपके बाजी एक मिनट दीजिएगा। बेगैरत। सियाल साहब मुझे याद है आपके हवालों का। मैं ना थोड़ा फ्री होता हूँ ना, ये थोड़ी देर तक वो अगर अपना अब्रॉड करता हूँ ना बंद, फिर इंशाल्लाह मैं ना वो आपको हवाले निकाल के इंशाल्लाह भेजता हूँ फिर आपको, नो प्रॉब्लम। वो हदीसों के नंबर तो मुझे याद है, बस वो मैंने टाइप करके वो पिक्चर लेनी है और फिर मैं इंशाल्लाह आपको भेजता हूँ। जी अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम। अहमद अली भाई आपकी आवाज आ रही थी। ठीक हुई ये पता नहीं चला कोई बात करना चाहता था तो इसके लिए मैं फिर मौत हो गया था। बोले आप? कोई नहीं यार, पहला आया हूँ, किस्मत हमारी दूसरे बैग में चाबी रह गई, सब ने आना है वापस, अब मजबूरी काम पे जाना पड़ गया।
क्या मतलब? फिर जिन वो दूसरे के आ जाना, मैं कहा चलो सही है। अच्छा, अभी काम पे जा रहे हैं आप? इधर इतनी देर बैठना, अभी कितने घंटे पड़े हुए हैं, अभी पड़े हुए हैं, नाम नहीं आ रहा, 7 घंटे पड़े हुए हैं। अच्छा, नहीं नहीं, फिर तो जाओ काम ते भाई, काम करो जाके। बैठूं नहीं नहीं, काम करो यूरो आन के। फोन किया ना, मैं मैं अभी आ गया हूँ घर, तो क्या करना है, आ जाऊँ या कल? कहता जल्दी जल्दी आओ। मैं सही नहीं नहीं, सही है सही है जी। अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम। अवैस भी खामोशी नाल आंदे हो तब। मैं जरा एक अफ्तारी कर रहा हूँ सर। पता नहीं पिछली बारी भी तुसी आए सी, तुसी खामोशी नाल बैठे सी, बह के तुसा गायब हो गए। सुनना अच्छा लगता है, आप बातें करें आप लोग। हाँ भाई वाह, सुभान अल्लाह। चलें जी, अभी अफ्तारी आप कर लें, अफ्तारी करने के बाद फिर आपसे गपशप करते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे कल्ट बस्टर बहन बैठी है, जाहिद साहब बैठे हुए हैं, तारिक चौहान साहब हैं, सारी इल्मी शख्सियात बैठी हुई हैं, जाहिद जमील जाहिद साहब हैं, भाई, अब्दुल्ला साहब हैं, जाहिद भाई भी आपकी तरफ सब अफ्तारी कर रहे हैं इस बहुत टाइम। ज़्यादा है। गया, अब हो गया अब्दुल्ला। अब्दुल्ला क्या अरसा है ही हो गया जी, अरसा ही हो गया। माशाल्लाह अपने की ना नहीं है अवैस भाई भी आगे ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अब्दुल्ला, जमील भाई लोग किधर की गए हो गए? की हाल है, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला साहब अरसा ही हो गया, ਤੁਹਾਡੀ आवाज ही नहीं सुनी कदी। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ अंदर बरात से ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਰੋਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ हैं। बस थोड़ा जिहा मसरूफ हो। हाँ वही मैं कहना, मसरूफियत है कोई ਤੁਹਾਡੀ, कोई ना मामला है। सियालवी साहब बैठे नहीं सन, ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ कारी साहब ਦੀ ਉੱਥੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਫਟਾਫਟ ਚੜਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੰਗ ਪੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਾ ਹਾਂ ਦਰਾ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਫਣਾ ਦਰਾ ਬਹੁਤ ਕਾਬੂ ਕਲਬੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣੇ ਆ ਅਸੀਂ कारी ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। कौन? ਉਕਾਬ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਕਾਬ कारी ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ कारी ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਾੜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸ਼ੋਲ ਵੀ ਵਜਨ ਦੇ ਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਟੈਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫਲੀਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ कारी ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ कारी साहब ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੇ कारी ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਲੀਦ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। अब्दुल्ला भाई अगली बारी मैं उन्होंने ब्रॉड पे जाऊंगा ना, मैं तो शेयर कर दूंगा। ये काइंड हार्टेड भाई आए हैं, काइंड हार्टेड भाई आए जरा ऊपर। आपने वो मुझे कल कहा था बात करने के लिए, लो जो फिर हैं कारी अली खुदा भाई, बख्श ते नहीं किधरे? ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਅਕਾਬ ਅੱਜ ਚੜਿਆ ਇੱਕ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੇ ਬਰਾੜ ਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜੀ ਖਾਤਮ ਨਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ। जाहिद भाई एक मिनट दीजिए। ਮੈਂ ਡਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ 6 ਸਫਾ 235 ਖੋਲ, ਉੱਤੇ 37 ਖੋਲ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। काइंड हार्टेड भाई आइएगा ऊपर, कुछ बात करनी थी आपने मुझे, आपका मैसेज आया हुआ था, आ जाए ऊपर, जो बात करनी है कर लें, कोई बात नहीं। फिर क्या अच्छा, इतने शाहिद भाई, आ गया। नैस भाई की ब्रॉड पे कर लेंगे आप लोग अच्छे टाइम पे, क्वाइट टाइम में, क्या नहीं नहीं काइंड हार्टेड भाई आप करें बात, मैंने कोई बंदा बोलेगा नहीं, आप करें बात, आपने जो करनी थी कर लें, कोई मसला नहीं है। अब वो अवैस भाई की ब्रॉड हो या मेरी ब्रॉड हो, आप खुल के बात करें, जो भी करनी थी आपने करें, ये कोई भी नहीं बोलेगा बीच में, इन सबको पता है। अच्छा हाँ जी, आप करें बात, नहीं जो भी आपने करनी है। नहीं, वो मैं एक छोटी सी, आई थिंक मैंने कहीं आपको सुना था, आई थिंक वो आजकल वो शायद उस ओनली उस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में, जो मैंने जो उस बारे में बात कर रहा हूँ, जो मैंने कहीं सुना था। कोई बात ओपनली करने बात, काइंड हार्टेड भाई ओपनली करने बात, कोई इशू नहीं। मूसा भाई को लेकर कि आपने लिखा था कि ऊपर कोई बोल रहा था, ऊपर हमारी किसी ब्रांड पे कोई आया था, तो वो जो एक बात कोई करता है अजीब सी, टॉयलेट को वगैरह इस तरह की कोई चीज़ कह रहा था।
तो वो नहीं, ये नहीं, पता नहीं किस तरह वफात हुई थी, ये पूछ रहा था शायद, ऐसा 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 ही था, कुछ पूछ रहा था कि कैसे वफात हुई थी। हाँ जी। तो नीचे जो है वो उन्होंने, मूसा भाई ने कुछ और कमेंट लिस्ट कर दिया था। मेरे आप पास ही मेरे बता पास दो। मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है, कहते हैं तो लगा दूंगा, आप कर जी लें जी। बात फिलहाल। अब मैं जो उस पूरे इवेंट पे समझा हूँ ना, मैं अपनी समझ समझाऊँ जो, मैं ये समझा हूँ कि उसने एक बात की कि पूछा कि किधर वफात हुई थी। अब जो मूसा भाई के मुताबिक, जो हमारे जो अकाबरीन हैं, उनकी वफात डेथ बेड पे हुई थी, आम बेड पे। जब वो वापस रिप्लाई कर रहे हैं, वो ये दिमाग में रख के नहीं कर रहे कि नाउज बिल्ला नाउज बिल्ला नाउज बिल्ला, जो है ना, अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह, जो है ना वो हजूर सौ की उस लिहाज से जिस तरह आप सोच रहे हैं वो कर रहे हैं, वो उस तरह से कह रहे हैं कि भैया इनकी भी डेथ बेड पे हुई थी, उनकी भी डेथ बेड पे हुई थी। अच्छा, आप एक बात बताएं मुझे काइंड हार्टेड भाई, एक छोटी सी बात बताएं काइंड हार्टेड भाई। यहाँ नीचे आपको आके कोई बंदा कमेंट करे और वो ये कमेंट करे जो कमेंट मैं ठीक नहीं समझता, लेकिन मैं उस कमेंट को दोहराता हूँ, आप उसका जवाब मुझे बताइएगा। कोई बंदा जी ये कमेंट आगे करे कि हु डाइड इन टॉयलेट, सिर्फ ये कमेंट है बस, ना इसके आगे कुछ लिखा हुआ है ना इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है, हु डाइड इन टॉयलेट। आप बताएं इसका रिप्लाई क्या होना चाहिए? नोबडी। अच्छा, अब इसके रिप्लाई में माज अल्लाह अगर कोई बंदा ये लिख दे रसूलुल्लाह, उसके बारे में क्या ख्याल है? वो पागल है और क्या, सर पे उसका ये दिमाग पागल हो गया, जो इलाज ये कराए अपना। ये मूसा ने कमेंट किया हुआ है, वो उसका भी स्क्रीनशॉट है मेरे पास। बस वो इलाज कराए, फिर अब क्या कह सकते हैं। अगर अब हाँ मुझे जी। पता नहीं कि आजकल सोशल मीडिया पे हर चीज़ बहुत इतनी ज़्यादा हो गई है, आपको पता है, आप लोग सब जानते हैं कि एक एक जो है आवाज़ भी जो है, आवाज़ों वाली भी दो आइडियाँ फिर रही हैं। मीर साहब इधर बोल रहे होते हैं, उधर कोई मीर साहब की आवाज़ लगा के फिर रहा है। नहीं नहीं, वो असल में और काइंड हार्टेड भाई वो डार्क नाइट की आईडी है, और मैं जब आपको वो स्क्रीनशॉट लगा कर दिखाऊंगा ना काइंड हार्टेड भाई, तो हर बंदा किसी ब्रॉड का मॉडरेटर नहीं बनता। डार्क नाइट की आईडी जब मूसा ने वो कमेंट किया हुआ है ना, हाँ तो मूसा के साथ आपको पता है ना, जब आप किसी ब्रॉड के मॉडरेटर हो, जी जी। मुझे वैसे मैं बताऊं, अगर ऐसा हुआ है तो भाई काइंड वो हार्टेड भाई, जिस काइंड हार्टेड इंसान ने भाई, भी, मैं बता रहा हूँ, अच्छा वलीद भाई मैं बताता हूँ, जिस मुझे सिर्फ इंसान एक ने, मिनट दे दें, मुझे काइंड हार्टेड भाई मुझे कॉल आ रही है, एक मिनट दें, आप इधर रुके, एक मिनट दें, और भाई एक मिनट दीजिएगा, कोई बात ना करे, मैं एक मिनट आता हूँ कॉल सुन के, ठीक है? एक मिनट दें मुझे। ठीक है, ओके। अवैस भाई सलाम अलैकुम। और सारे, पता नहीं कौन कितना गुस्से वाला है यहाँ पे, मुझे नहीं पता। बाकी अवैस भाई का तो मुझे पता है वो गुस्से वाले नहीं है, ठीक है। सलाम अलैकुम। और वरीद भाई का भी पता है, उनका भी गुस्सा नहीं है खास। यार ये सब प्यार करने वाले हैं, इनमें कोई भी गुस्से वाला नहीं। अच्छा चलें फिर, सबको सलाम अलैकुम, ठीक ठाक। वो सबको मना करके गया ना, बोलना नहीं, इसलिए कोई बंदा माइक नहीं बोला। आवाज आवाज आ रही मेरी काइंड हार्टेड में? जी जी आ रही है, जी जी आ रही है। मैं अर्ज ये कर मैं रहा था आपको ये काइंड कह रहा हार्टेड भाई, था, जी, जी, आप क्या कह जी रहे थे? जी, मैं आपको बता दूं, मैं ना, काफ़ी अजीब लग रहा है मुझे ओवरऑल टिकटॉक पे इस वक्त। मैं अब ये जिसने भी ये बात की है, चाहे वो मूसा है या कोई भी है, ठीक है ना, मेरी तरफ से वो उसको मेंटल हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहिए सिंपली। बस काइंड अब हार्टेड भाई इतनी ही बात ही है, मतलब ये जो बात आपने ये वाली कर दी है ना, यही बात ही हाँ काइंड हार्टेड भाई काफी है। देखिए इसके बाद हाँ जब आप अगली बात जो करेंगे ना, कि नहीं, अब अक्सर लोग जो करते हैं कि नहीं ये स्क्रीनशॉट किसी ने बना लिया होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे होता नहीं है ना काइंड हार्टेड भाई। मतलब एक जी डार्क नाइट की आईडी आजकल मूसा के नाम की फिर रही है, और मूसा ही उससे बात करता है। कई दफा अब हमने ब्रॉडर पे सुन भी लिया है ना कि जी मूसा ही ऊपर नीचे फिर रहा होता है। और फिर जिस ब्रॉड की मेरे पास स्क्रीनशॉट है ना, जिसके पे मैं बात कर रहा था, उस जी ब्रॉड पे मैं भी बैठा था, आप भी बैठे थे, एमजी भाई भी बैठे थे, हम सब बैठे थे। माइंड रोस्टर, वो जो शेख आदि की ब्रॉड थी जिसके ऊपर हम थोड़ी बात नहीं कर रहे थे, अगर आपको जी जी याद हो। अच्छा, जी उस ब्रॉड पे अगर आपको याद हो तो डार्क नाइट की आईडी से मूसा भी उससे पहले बैठा बात कर रहा था। जब मूसा नीचे उतरा है तो मैं चढ़ा ऊपर ब्रॉड पे, ठीक हो गया। जी और जी उसी ब्रॉड पे मूसा ने नीचे कमेंट किया हुआ है
और उसका भी स्क्रीनशॉट मेरे पास है। जी तो मतलब ये एक कमेंट नहीं है अपना काइंड हार्टेड भाई, इस तरह के मूसा के कमेंट, कई कमेंट चल रहे हैं आजकल, मतलब इसकी कोई तावील नहीं है। फिर जब मूसा कमेंट करे, और मूसा ने ये कमेंट सैफी भाई की ब्रॉड पे किया हुआ है, और सैफी भाई की ब्रॉड का वो मॉडरेटर है। अगर कोई मूसा नाम का कोई और बंदा होता तो वो सैफी भाई उसे मॉडरेटर बनाते अपनी ब्रॉड का। डार्क नाइट की आईडी उनकी ब्रॉड की मॉडरेटर है। जी तो ये ऐसे नहीं होता ना काइंड हार्टेड भाई। भाई, एक सेकंड, मैंने आपको एक बात बतानी है वलीद भाई। आपको पता है 6-7 महीने पहले एक पूरा इन्होंने सेशन लगाया था, उसमें मसरूर भी था, नादिर भी था, उमर भी था, जिसमें इन्होंने ना मुंह से बोलकर पूरी बताई थी कि जी मिर्जा साहब कैसे फोत हुए, और फिर मुझे उसने पता- कहा कि बिल्कुल वैसे ही नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रसूल पाक। वो मेरे पास वो वीडियो अभी भी पड़ी है। हाँ जी मुझे तो पता ये है तो बाजी, अभी मैंने से तो वो तो सुना नहीं था, हुआ। लेकिन बाजी मैंने सुना हुआ है, लेकिन असल में तो काइंड हार्टेड भाई उस वक्त नहीं आए थे ना टिकटॉक पे। काइंड हार्टेड भाई भी आप समझेंगे अभी नए नए मतलब ब्रॉडों पे आना शुरू हुए हैं, तो उन्हें 3 महीने टिकटॉक पे 3 महीने हुए हैं मुझे आए हुए। हाँ जी ये जो आप ये जो बाजी बात कर रही है उससे पहले किया है। तो काइंड हार्टेड भाई ये बेसिकली तो ये जो मूसा भाई ने, अब मैं देखें अभी भी मूसा भाई कह रहा हूँ, हालांकि मुझे कहना नहीं पड़ चाहिए, मैं तो देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। इस तरह के जब कमेंट काइंड हार्टेड भाई सुने जाते हैं ना, ये देखे जाते हैं, तो लामहला तौर पर जिनको आप खातमुन नबीयीन हम मानते हैं और सबसे आला, इस दुनिया का सबसे आला और अफजल तरीन नबी मानते हैं, उनसे आगे हम किसी को नहीं मानते, ठीक है। जी जी तो आप भी इसी तरह ही मानते होंगे, क्योंकि क्लेम तो यही है ना। सब मानते हैं, सब ये करते हैं, तो सब काइंड हार्टेड भाई मैं एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे ने आके मिर्जा साहब के बारे में गलत बात कर दी, मानता हूं मैं बात, ये हजारों दफा होती होगी ये वाली बात। तो काइंड हार्टेड भाई, जिनको आप भी मिर्जा साहब कहते हैं कि मैं उनका गुलाम, यही कहते हैं ना। हाँ वो ये लिखा हुआ उन्होंने कहीं, मैं वो हाँ जी, सूरज है, मैं चांद हाँ हूँ, हाँ जी। इस तरह की तो मुझे बताएं काइंड हार्टेड भाई, कोई बंदा आके, मैं कहता हूं कि कोई बंदा आके गलत बात भी कर देता है मिर्जा साहब को, करते होंगे लोग, बेशक करते जी होंगे। तो काइंड हार्टेड भाई क्या वो बातें लुटाई जाएंगी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ? आप इसे ठीक समझते हैं? तौबा इस्तगफार, क्या बातें कर रहे हैं यार। हाँ जी यही बात मैं काइंड हार्टेड भाई, नहीं आपको नहीं कह रहा मैं सिर्फ ये आपको इन लोगों की बता रहा हूँ बातें। ये खुदा की कसम काइंड हार्टेड भाई स्ट्रेट अवे बातें लुटाते हैं, मैंने खुद सुना हुआ है। जी मेरा दिल इस तरह का नहीं है कि मतलब मैं किसी के ऊपर, मैं क्यों हर बंदे के ऊपर इल्जाम लगाता हूँ, नहीं लगाता। ये मुझे चंद लोग हैं जिनके मैं नाम फिंगर टिप्स पे ले सकता हूँ, और मैं आपको और उन लोगों के मैं आपको सबूत दे सकता हूँ कि जिन्होंने दिल को, मतलब मेरे दिल को इस तरह हर्ट किया हुआ है कि मेरा दिल नहीं करता इनसे बात करने का, या इनको देखने का दिल नहीं करता। जहां पे बैठे होते हैं मैं वहां पर जाता नहीं हूँ, मुझे पता होता है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी ये खुले आम माज अल्लाह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेंगे, और जो सुनी नहीं जाएगी। जी, अजीब सी बात है, मैंने मूसा भाई को इस तरह सोचा नहीं था। एनीवे, हाय 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 हाय, एनीवे, कौन आए थे? एक हमारे ऑफिशियल हैं वहाँ पे जो अमीर साहब के करीब होते हैं, जो या यूके में अमीर के करीब होते हैं। उनका तो नाम क्या है काइंड हार्टेड भाई? कोई आईडी का नाम तो बताएं। आईडी में अब मुझे भूल गया उनका आईडी का नाम, लेकिन वो अमीर साहब के करीब होते हैं, मुझे भूल रहा हूँ उसका नाम। तो अल नासिर तो नहीं? अल नासिर साहब तो नहीं है? ये यार, लेकिन वो करीब, इतना मुझे पता है वो करीब होते हैं, वो मतलब अमीर साहब के, वो अमीर साहब के इधर जो है करीब होते हैं यूके में। अच्छा, तो ये होते हैं मतलब उनके साथ वो उनका ऑफिस में आन जान होता है अमीर साहब के ना। राजा ताउल मनान तो नहीं? मैं क्या कहूँ, बस वो आना जाना उनका होता है, वो बता रहे थे। तू गड्डी चला, गड्डी ना किसी च मार दी। हाँ, राजा ताउल मनान तो कह नहीं? रहे वो थे कि ऑफिशियल वो ये अब्दुल्ला भाई राजा साहब की बात ही कर रहे हैं, खैर कर लेने दें बात। अच्छा ठीक है अब्दुल्ला, करें काइंड हार्टेड भाई बात करें। हाँ, मुझे अब वो आईडी भूल रही है मुझे एग्जैक्टली। तो बहरहाल वो कह रहे थे यही चीज़, इसी बारे में डिस्कस हो रही थी कि कहीं सुनने में आए, उसको इन्वेस्टिगेट करना है और उस बंदे के बारे में वहाँ पे वो एक्शन लेंगे, जो भी करेंगे मुझे नहीं पता, जहाँ भी उनको नज़र आया है। तो बेसिकली इसी बात को डिस्कस कर रहे आए थे वो, कि सुनने में जगह जगह कहीं आ रहा है, कहीं से कंप्लेंट मिल रही। क्योंकि हमारे अगर कोई इस तरह की बात हो ना, मैं आपको एक बार बता दूँ, वो ऑफिशियली तौर पे अपने अहमद ही कंप्लेंट कर देते हैं उनको हमारे जो ऑफिशियल हैं उधर जी जमात ऊपर ना, वो कंप्लेंट कर देते हैं कि ये देखें, अपने ही अहमदी कंप्लेंट कर देते हैं। फिर उनके खिलाफ एक प्रोसेस चलता है, जो भी बात हो रही होती है, चीज़ें आपस में डिस्कस हो रही होती है, और उनको मना किया जाता है या टोका जाता है या बोला जाता है, या एक चीज़ या उनको पाबंदी लगा दी जाती है। ये एक प्रोसेस है यहाँ पे।
अलबत्ता। तो कल आए थे, अब वो देखो उसमें क्या क्या कर रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छी बात है। ये अगर ये प्रोसेस जिसकी बात आप कर रहे हैं या इस पे कुछ एक्शन हो सकता है तो जरूर होना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उनको अल्लाह माफ करे, जमात से उसका इखराज करें, वो जो भी करें, लेकिन कम से कम उनकी एक, वो क्या कहते होते हैं कि उनकी मतलब उनको रिबटल तो होना चाहिए ना, या कम से कम उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं, मतलब हम अहमदिया जमात में होते हुए हम कर क्या रहे हैं। बस यही हो जाए तो ही काफी है। बताता हूँ 100% ये रिबटल होता है, क्योंकि जब ये नोटिस में कहीं कंप्लेंट पहुंचती है, अपने अहमदियों से ही कंप्लेंट पहुंचती है ऊपर, तो वो इन्वेस्टिगेशन पे चलती है। समझ आ रही है? अपने ही अहमदी कंप्लेंट कर देते हैं और फिर आगे जो है वो काफ़ी कुछ होता है। अगर बता अब ये नीचे ही काइंड हार्टेड भाई, आप हमारे अवैस वलीद भाई हमारे वलीद जी भाई जी। ये मैं इनकी तायद करता हूँ काइंड हार्टेड भाई की, कि ये जो फरमा रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिसका पता चल जाए कि जिसने ये खबासत की है, हम्म, तो फिर उससे फिर करवाते हैं रुजू कि क्या तुमने ये बगैरती की, हम्म, और इसका तुमने ये जो आइंदा के बाद माफ़ी मांगो या इसके ऊपर तुम तौबा करो। हम्म। चंगेज भाई, अब मैं अर्ज ये करूंगा कि आप भी और काइंड हार्टेड भाई दोनों, मुझे पता है कि आप दोनों बड़ी मोहब्बत करते हैं अवैस भाई के साथ, आप दोनों का एक रिश्ता है अवैस भाई के साथ, ये दुरुस्त बात हाँ भी है ना? आपके साथ भी बड़ा अच्छा नहीं रिश्ता नहीं है, नहीं नहीं, इसमें मैं कोई असल शक है? नहीं नहीं, असल में तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक इम्पोर्टेंट बात इसलिए है, मुझे पता है मेरे साथ भी है, लेकिन मैं असल में मैं अवैस भाई का दो इसलिए बंदों नाम का ले रहा हूँ। दो बंदों का मैं खुद कहता हूँ कि एक वलीद भाई और एक अवैस भाई, मुझे इन दोनों से मोहब्बत सिर्फ इसलिए है कि ये बात अच्छे तरीके से करते हैं और इनकी बात में, इनके अखलाक में फ़र्क नहीं है, और ये नफ़रत नहीं करते, ये हकारत नहीं करते। ये सबसे बड़ी बात मुझे जो अच्छी लगती है आप दोनों में। आपका बड़ा शुक्रिया चंगेज भाई। मैं तो असल बात जो करने लगा था ना कि काइंड हार्टेड भाई और चंगेज भाई, ये हमारे नीचे ना अवैस भाई बैठे हैं। आप खुद देखें कि मैंने नहीं देखा कभी अवैस भाई को ये कहते हुए कि यार मेरा इस बंदे ने दिल तोड़ दिया है, दिल दुखा दिया इस बंदे ने। मतलब कल ये एक ब्रॉड पे मेरे साथ बैठे थे इम्तियाज भाई की, वहां पे इम्तियाज भाई ने कहा कि मूसा भाई को ले लें, आप अवैस भाई मॉडरेट करवा लें। तो अवैस भाई ने वहां खुद रिमार्क्स दिए हैं कि इम्तियाज भाई अगर 2 दिन पहले आप कहते तो शायद मैं ये कर देता, लेकिन अब जो मूसा भाई ने चंद हरकत की हैं, मेरा दिल इनसे टूट गया है। मतलब कि अगर अवैस भाई तक का दिल टूट गया है ना, तो फिर इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो खास हुआ है ना, जिसकी तरफ हम सब निशानदेही कर रहे हैं।